when amplitude modulation will take place, what will be happen? There will be a new wave like this. The modulation will be, this is the message signal, this is the carrier signal. Basically this is the carrier signal, this is the message signal. When both of them, the characteristics of the AC, the amplitude of AC change in accordance to this, so we can make like this, we can make it like this. Like this, and this carrier will be like this. This is the amplitude modulated wave. This is amplitude modulated wave, that is S of am into t. This is, it's called, like we can say, this is S of am of t. This is the m maximum, and this point is called m minimum. This point is called m minimum. Got it? This is the m maximum, and this is the amplitude modulated wave. Amplitude modulated wave. So what is amplitude modulated wave? Amplitude modulated wave means the characteristics of the amplitude of this carrier wave is varied in accordance to the message signal. In accordance, ये मैसेज सिग्नल है, इस मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग क्या चेंज हो रहा है? हमारा कैरियर सिग्नल चेंज हो रहा है. दिस इज चेंजिंग इन द कैरियर सिग्नल इन अकॉर्डेंस टू द मैसेज सिग्नल. गॉट इट? लाइक दिस. नाउ सपोज व्हाट इज ए मैक्सिमम एंड व्हाट इज ए मिनिमम. तो carrier after modulation, we can say the signal after modulation. Okay, so this is the amplitude modulated wave. This is the empty message signal. Yes, just we have started. This is the waveform for the amplitude modulated wave. We are drawing the waveform. We are drawing the waveform for the amplitude modulated wave. This is the message signal. Basically, this is the message signal, empty. The maximum amplitude of this AM, this is C of t, and this is S of amplitude modulated wave. This waveform. This is a waveform. Write it. What is carrier after modulation? Carrier after modulation is S of AM after modulation is, we have read about it, AC 1 plus mu cos 2 pi FM. Last time we have studied about it, into cos 2 pi FCT. 2 pi FCT. This is the value of this. This is the amplitude modulated wave. Amplitude modulated wave expression for, we can write in the next slide. Okay, no issue. Draw it fast, then we will move toward next. Write down. Just write. This is the amplitude modulated wave, simple message signal. This is a message signal. We write it. This is the message signal जिसका हमें मॉड्यूलेशन करना है. दिस इज द कैरियर वेव. दिस इज द कैरियर वेव जिसका एम्पलीट्यूड चेंज होगा इन अकॉर्डेंस टू मैसेज सिग्नल. द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव इज चेंज इन अकॉर्डेंस टू दिस मैसेज सिग्नल. दिस इज द सेम शेप ऑफ दिस same. This is like this, same like this, and this is like same like this. So this is the amplitude modulated wave. Amplitude of the carrier wave, this carrier wave, high frequency wave, high frequency carrier wave, varied in accordance to
message signal. High frequency carrier wave varied in accordance to message signal. Done. Next. Now, next. S of AMT is defined as, क्या आया था अपने पास एक्सप्रेशन, लास्ट एक्सप्रेशन सिंगलटोन एएम के लिए जो हमने कैलकुलेट किया था. व्हाट विल द एक्सप्रेशन, याद होना चाहिए आपको. AC 1 plus mu cos 2 pi FMT. This was the last expression we got into cos 2 pi FCT. This was the expression. Okay. What is mu? Mu is the modulation index. Got it? Now, this is the basically amplitude of this wave. This wave का amplitude. This wave is amplitude. ये जो wave है, amplitude modulated wave है, वो like this. So this is the amplitude modulated wave. तो इसका जो value है, इसका maximum क्या हो सकता है? इसका maximum, the maximum value of this is mx. This is the maximum value or amplitude modulated with the mx. mx की value क्या हो सकती है? mx की value क्या हो सकती है? The amplitude of this wave is, amplitude क्या है इसका? Amplitude is basically, इस वेव का अगर एम्पलीट्यूड निकालें, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का एम्पलीट्यूड निकालें, तो दिस इज AC 1 plus mu cos 2 pi FMT. This is the amplitude of the amplitude modulated wave. But what can be the max? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है? मैक्सिमम cos की वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 से लेके -1 तक. तो 1 अगर 1 वैल्यू होगी तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विल बी AC into 1 plus mu, 1 plus mu, and or we can say the minimum the minimum of this cos की वैल्यू -1 हो सकती है. मिनिमम 1 से लेके -1 के बीच में वेरी करती है. तो -1 मींस AC 1 minus mu. So these are the max and minimum, the value of max and minimum. Remember it. These are the important formula. These are the important formula. Max for the amplitude modulated wave. This max. This is the max. Max. This is the minimum. This is the minimum. What is the minimum? This point is minimum basically. This point is minimum. This is the maximum. What is the minimum? Minimum is this. This. Minimum is this. Done. And always remember, A maximum, AC is equal to, always remember, AC is equal to Mx plus A min by 2. Always remember it. For AM is equal to Mx minus this from the waveform. Direct, remember it. AC is equal to Mx plus A minimum. Mx is this. Mx. A minimum is this. This is the AC is equal to Mx plus A minimum by 2 and AM is equal to Mx minus A minimum by 2. And from here, this, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे इन दोनों को, तो यहां से कैलकुलेट हो सकता है आपका, that is, if you solve it, you will get mu is equal to Mx माइनस ए मिनिमम. क्योंकि म्यू जब भी आपको डायरेक्टली नहीं दिया हो तो ऑलवेज रिमेंबर द म्यू इज इक्वल टू एम अपॉन एसी. ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको म्यू ये नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या जो पहले अपन ने म्यू निकाला था, म्यू अपन ने पहले क्या निकाला था, के इंटू एम. इफ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन डायरेक्टली, ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला एम अपॉन एसी. AM upon AC. AM of mu is equal to modulation index is also defined as, first formula is this, second formula is this. If this is not given in question, use it. If you will use it, you will put it, you will get, in equations को put कर दो इसमें, you will get it, mu is equal to Mx minus A minimum upon Mx plus A minimum.
This is the mu. Modulation index. Modulation index. Clear? Mu. Done? So remember these formulas also. These are also important formulas. This formula AC is equal to this, AM is equal to this, mu is equal to AM upon AC. अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ तो सबसे पहले ये यूज करना है. If not given this, use AM upon AC always for the modulation index. And also we can use this formula mx minus A minimum upon mx plus A minimum. We can use it. Got it? Write these formulas. These are the important formulas for the examination. We will solve some problem so you can be comfortable with. Solve it. लिख लिया? Done. Next. So these are the important formula. I am rewriting. 4 formula को याद रखना है. 1, 2, 3, 4. These are the important formula. These are the important formula. Also this mx amplitude modulated wave का maximum amplitude कितना हो सकता है? AC into 1 plus mu, क्योंकि cos की वैल्यू -1 से 1 तक वेरी करेगी तो 1 plus mu और 1 minus mu. तो mx upon a minimum अगर इसको सोल्व करोगे आगे तो you will get AC is equal to this, AM is equal to this, mu is equal to this and mu is equal to also this. Clear? These are the important formula for the GATE examination. ये चारों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है. Okay, now let's solve the next question, numerical. We were solving the numerical last time. Next question, लिखिए numerical question. Question is like this: a carrier tan cos 8 pi into 10 की पावर 5t is amplitude modulated by a message signal of 6 cos 6 pi into 10 की पावर 3t. Find all the parameter and draw the spectrum. This is a question. This is very important from the GATE point of view. Solve it. Try to solve it. Got it? Solve it. Find all the parameters: mu, AC, AM, FC, FM, bandwidth, power, carrier power, signal power, sideband power, total power, carrier amplitude, carrier frequency, message amplitude, message frequency. ये सब चीजें कैलकुलेट कीजिए. लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन किया था ऐसा अपन ने. Efficiency, then last draw the spectrum for it.
Draw it, draw. Solve it. Try to solve it. Yes, Tejas, please solve. Please solve it. Okay, let's move it. Now, see the question. A carrier signal is given. This is a carrier wave. This is basically carrier. Then read next. Is modulated by a message signal. This is the message signal MT. This is CT. Then find all the parameters for amplitude modulated wave. क्योंकि लिखा हुआ है amplitude modulated and draw the spectrum. That's very easy. Can we calculate? Okay, let's we calculate it. Solve the question. Nine, right. Given solution is this. Solution. What is solution? Okay. सॉल्यूशन करते हैं. गिवन क्या क्या है अपने को, सबसे पहले वो लिख लेते हैं. व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? क्वेश्चन गिवन is given carrier is 10 cos 8 pi into 10 to the power 5t. Carrier is equal to 10 cos 8 pi into 10 to the power 5t. This is the carrier. What is the amplitude of the carrier? AC is compare with AC cos 2 pi fct. Compare with this. You will get AC is equal to 10 volt and compare the 2 pi current 4 fc. तो क्या बच जाएगा? That is 40 kilohertz. It will be 40 kilohertz. Clear? It will be, we can write it, compare it with this fc. Fc will be pi से pi 4. So this is 4 into fc is equal to 4 into 10 की power 5. ठीक है? Now hertz. So we can say this is fc is equal to, we can directly write it. This is fc. Now next, given empty is given like this. empty क्या दिया हुआ है? empty is given in the question, last question. What is empty? 6 cos this. 6 cos 6 pi into 10 to the power 3. 6 cos 6 pi into 10 to the power 3t. Got it? What will be message signal का AM? Compare with AM cos 2 pi fmt. Compare with, इसको कंपेयर कीजिए किससे? AM cos 2 pi fmt message signal. Compare with it. What will the value? AM is equal to 6 volt and frequency is, if you will compare it, 3 into 10 to the power 3. 3 into this, compare 2 pi fm, this compare it, so fm is equal to
3 into 10 की power 3, that is 3 kilohertz. Got it? This is FC is equal to here is 400 kilohertz. This is 400 kilohertz. This is 3 kilohertz. Clear? Now, these are the value of AC, AM, FC, and FM. Okay. Next, some parameter. Mu. Mu is not given in the question. Modulation index. Next parameter we can calculate. मैं आज तक जितना पढ़ाया सारे पैरामीटर निकलवा रहा हूं आपसे ताकि आपको AM क्लियर हो जाए. Mu. Mu is equal to modulation index. Modulation index. If mu is equal to not given in the question, mu is not given. Not given. Always remember mu is equal to, अभी अपन ने कैलकुलेट किया था लास्ट, जस्ट स्टार्टिंग किया था जब AM upon AC. ठीक है, तो it is not always true. If not given in the question, mu is not given in the question. Exactly mu is equal to Ka into AM. This is the mu. But if it is not given, then use AM upon MC. AM is 6 upon 10. That is 0.6. This is the mu for this question. This is the mu for this question. Now, bandwidth for the amplitude modulated wave is कितना होता है? Bandwidth for the AM is 2 FM. FM कितना आया था? 2 into 3 kilohertz. That is 6 kilohertz. This is the amplitude. 6 kilohertz. Clear? Any doubt? If you have written this, calculate carrier power. अब यहां तक लिखिए. Write it. Find the carrier power. Carrier power. Carrier power कैलकुलेट कीजिए. Carrier power is PC. PC कितना होगा? PC will be equal to कितना होता है carrier power? AC square upon 2R. If R is antenna resistance not given, if antenna resistance not given in question, always remember R is equal to 1 ohm, not given in question. अगर आपको कभी भी एंटीना नॉर्मलाइज लेते हैं अपन, नॉट गिवन इन क्वेश्चन, अगर ये रेजिस्टेंस कभी भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो ऑलवेज टेक 1. रिमेंबर इट. कैरियर पावर इज PC is equal to AC is 10 square divided by 2, that is 50 watt. 50 watt. Next, total power. Total power क्या होता है? टोटल पावर इज PT इज इक्वल टू PC. फॉर्मूला लिखा था अपन ने 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2. PC अपने पास ऑलरेडी है और म्यू भी है 0.6. कैन बी कैलकुलेट इट? यस. PC इज 50. 1 प्लस 0.6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. इफ यू कैलकुलेट इट, PT विल बी, यू विल गेट 59 watt. 59 watt. This will be the PD. This is PC. 59 watt. Clear? जब अपने को PC और PD दोनों कैलकुलेट कर लिया तो कैन वी कैलकुलेट द साइड बैंड पावर? साइड बैंड पावर देखिए, टोटल पावर क्या होती है? PT इज इक्वल टू टोटल साइड बैंड पावर प्लस कैरियर पावर. यही फॉर्मूला होता है, अपन पढ़ते आए हैं, पहले भी क्वेश्चन किए अपन ने इसके. तो P साइड बैंड कितना हो जाएगा? P साइड बैंड इज इक्वल टू PT माइनस PC. PT इज 59 वॉट माइनस PC इज 50 वॉट. तो P साइड बैंड इज इक्वल टू 9 वॉट. कितना आ गया? 9 वॉट. और अपर साइड बैंड का कितना पावर होगा और लोअर साइड बैंड का कितना होगा?
डिवाइडेड बाय 2, दोनों में आधी आधी होती है, तो 4.5 वॉट। क्लियर? एक एक पैरामीटर अपन ने एम का कैलकुलेट कर लिया, कहीं कोई गलती होने की संभावना ही नहीं है। वी हैव कैलकुलेटेड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द एम, वी हैव डिस्कस इन डिटेल। लास्ट यू हैव टू फाइंड द मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी, modulation efficiency, you have to find the modulation efficiency also. Can you find modulation efficiency? Write it, पहले ये लिख लीजिए, then we will find the modulation efficiency. Done? देख लिया ये सब? Can you move ahead? Okay, next, modulation efficiency. मॉड्यूलेशन इफिशियंसी क्या कैलकुलेट होगी, इसके लिए कैलकुलेट करो। क्या फॉर्मूला होता है? दैट इज म्यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू स्क्वायर। दिस इज द मॉड्यूलेशन इफिशियंसी, कैलकुलेट इट। व्हाट विल द आंसर? दैट इज 0.6 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 0.6 का होल स्क्वायर। So you will get neta is equal to, there is neta, modulation efficiency is neta, neta is equal to 0.15 into 100 भी करते हैं इसको, ठीक है ना, ताकि परसेंटेज में आ जाए into 100। तो 0.15 into 100%, that is कितना आ गया? 15% आई है केवल इफिशियंसी। कितना परसेंट? 15% मॉड्यूलेशन हुआ है। दिस इज ऑल अबाउट योर बेसिक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव क्वेश्चंस। क्लियर? ड्रॉ स्पेक्ट्रम, आप खुद ड्रॉ कर लोगे इसका? ओके, कैन यू ड्रॉ द स्पेक्ट्रम? दैट्स वेरी इजी। पॉजिटिव साइड स्पेक्ट्रम आई कैन ड्रॉ फॉर यू। दिस इज 0। पॉजिटिव साइड स्पेक्ट्रम 1 ऑफ द AC by 2, AC by 2, that is 10/5। ये पहले भी ड्रॉ कर चुके हैं अपन, that is sorry 10/2, that is 5 वोल्ट। देन आसपास दो, दिस इज FC, तो FC प्लस FM भी होगा एंड FC माइनस FM भी होगा। FC प्लस FM पे क्या मैग्नीट्यूड होता था? दिस इज AC म्यू बाय 4, बेसिकली दिस। तो AC म्यू बाय 4 इज, AC दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.6 अपॉन 4 करोगे तो इट विल बी 0.6, इट विल आल्सो 0.6। दिस इज द स्पेक्ट्रम, सेम इट विल बी ड्रॉ दिस साइड। दिस इज द स्पेक्ट्रम फॉर amplitude modulated wave singleton. Last time also we have solved one question regarding this, so I am not going in detail. I have explained each and everything about this spectrum. Then write next question. Next question. Next question. S of t is equal to 4 cos 3 to 100 pi t plus 10 cos 4000 pi t plus 4 cos 4800 pi t. Find
all the parameters, find all the parameters and draw spectrum. This is amplitude modulated wave, जिसका ये आपको this is amplitude modulated wave, आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है. You have to find all the parameter and draw the spectrum for it. Got it? This is the amplitude modulated wave. S of t, this is given in the question, and you have to find all the parameter and draw the spectrum. Try to find it. New question, Ayush. This is the new question. This is the amplitude modulated wave given, and you have to find the all parameter. Solve it. Try to solve it. Do you remember any standard regarding this? A standard is written already by you in question copy. Please say AC cos 2 pi FCT plus AC mu by 2 cos FC plus FMT plus AC upon 2 cos FC minus FMT. This is already written in the question, already written in the theory like this. ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर का एक्सप्रेशन अपन ने लिखा भी था एक बार. इससे कंपेयर कीजिए इसको, AC mu by 2. Compare it. Compare with the given in the question. You will find all the answers. You will find all the answers. Try for it. Try to solve it. क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. Try to solve it. Can you solve it? That's very easy. Compare with these terms. These terms, can we compare to this? We can compare. We will find, if we will compare this with this, AC is equal to, क्या मिलेगा हमें? AC is equal to 4 volt और 10 volt. क्या दिया हुआ? ध्यान से देखिए एक बार, कंपेयर कीजिए. बेसिकली 10 cos 400 pi t, इसके अंदर कुछ ऐड किया तो 3200, इसके अंदर कुछ ऐड किया तो 4800, यानी 800 इस पे ऐड किया है, 800 इसमें से माइनस किया है. बेसिकली दिस इज योर AC cos 2 pi FCT, एंड दीज आर द सब टर्म्स. ये वाली टर्म्स, ये दोनों टर्म्स है. ठीक है. नाउ इफ यू विल कैलकुलेट इट, कंपेयर दिस विथ दिस, you will get AC is equal to 10 volt. AC is 10 volt. AC mu by 2. AC mu by 2, यानी this is compared with this 4. AC mu by 2 is equal to 4. Then you will get AC आपको पता है, 2 आपको पता है, तो you will get mu is equal to 0.8. Mu is equal to 0.8. Now FM, FC plus FM कितना दिया हुआ है? FC plus FM is 4800 and FC minus FM is 3200 pi t. लेकिन नहीं, cos 2 pi FCT है ये, 2 pi FCT यानी 2000. यहाँ 2 को कंपेयर करना है, तो दिस इज FC plus FM को 2 के साथ कंपेयर करना है. तो यहां से FM जो आएगा आपका, वो आएगा 400. यहां से FM, क्योंकि दुगना है 2000 में
दिस, इसका भी हाफ 1600, तो 1600 प्लस 2000 यानी 400, तो एफएम आपका आ गया 400 हेड। कैसे आया? क्योंकि 4000 का हाफ इज 2000 हेड, जिसका हाफ 3200 का हाफ इज, क्योंकि 2 पाई एफसीटी होता है, दिस इज बेसिकली कोस, दिस इज 2 पाई, सॉरी यहां पे आपको लिखना था 2 पाई, दिस इज आल्सो 2 पाई, 2 पाई, तो 2 पाई, 2 पाई से कंपेयर करेंगे तो 200 माइनस 1600 इज 400 हेड्स, दिस इज योर एफएम, एफएम इज 400 हेड्स, एफएम इज 400, कंपेयर विद दिस इज बेसिकली ये, यहाँ पे 2 पाई भी आएगा, सॉरी, तो यहां से कंपेयर करोगे तो एफएम इज 400 हेड्स। बैंडविड्थ कितना आएगा? व्हाट विल बी बैंडविड्थ? बैंडविड्थ फॉर एफएम is equal to 2 FM, then FM is given 400 hertz, so bandwidth will be 2 into 400 hertz equal to 800 hertz. This will be the bandwidth, this will be the bandwidth. Clear? Now next, पीसी क्या हो सकता है? पीसी इज इक्वल टू, अपन जानते हैं एसी स्क्वायर बाई 2 एंड पीडी इज इक्वल टू एस पीसी 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2, यही होता है पुट। म्यू का वैल्यू कितना आया था? म्यू इज इक्वल टू, हमने जो हमें मिला था 0.8, रिटर्न हियर म्यू इज इक्वल टू 0.8, पुट हियर एस स्क्वायर, आल्सो पुट हियर, यू विल गेट पीसी इज इक्वल टू 50 watt, and if you will put here 0.8 and pc, pt is equal to 50, 1 plus 0.8 का whole square divided by 2, you will get pt is equal to 66 watt, pt is equal to 66 watt, यानी आपका टोटल पावर इज 66 watt, pc is equal to 50 watt, यानी साइड बेंड पावर कितना हो गया? साइड बेंड पावर इज 66 minus 50, that is 16 watt. Side band power is 16 watt, and lower side end power is half divided by half. VLSB is equal to VP USB is equal to 16 by 2, that is 8 watt. 8 watt. This is also calculated. All the parameters we are calculating. Last, efficiency. Efficiency. Neta. Neta is equal to mu square upon 2 plus mu square, then it is 0.8 का whole square upon 2 plus 0.8 का whole square, it will be neta. Neta कितना आएगा? It will calculate, if you calculate it, 0.24 means 24%. 24%. Done? Put out? Completed? Okay, move next. Next question. Write it. Next question. The question is this: the peak amplitude of the peak amplitude of AM signal varies
between 2 volt and 10 volt, find mu comma pt comma neta. Find the peak amplitude of the AM signal varies between 2 volt and 10 volt. Then we have to find the mu, pt and neta. Can solve it? It's very easy problem. You have given the peak amplitude of the AM signal varies between this Mx. This is A minimum given. Mx is given कितना कितना है? Mx is 10 volt and A minimum is 2 volt. Now, what is the relation between mu and Mx or A minimum? Mu is equal to Mx minus A minimum. ये फॉर्मूला लिखा था आपने अपॉन Mx प्लस A minimum. तो म्यू कितना हो जाएगा? Mx कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? That is given 10 minus 2 upon 10 plus 2. What will be the 10 minus 2 is 8 upon 12. यानी if you will divide it, 2 4 ja, 2 6 ja, it is 2 by 3. This is mu. Mu is 2 by 3. That is 0.66. Got it? Done. Now AC. AC क्या होता है? AC का इससे क्या रिलेशन है? Mx plus Min divided by 2. This is the AC formula we have written today. Mx कितना है बेटा अपने पास? Mx is 10 plus 2 divided by 2. That is 6 volt is the AC. AM कितना होगा? AM भी कैलकुलेट कर सकते हैं. This 10 minus 2 by 2. This is AM. Now PC. PC is equal to AC square by 2. 6 square by 2. यानी 36 upon 2 is 18 watt. This is your PC. क्लियर? तो PT अगर आप कैलकुलेट करोगे तो PT क्या आएगा बेटा? PC into 1 plus mu square by 2. Put here the values. PT is equal to PC is 18 into 1 plus mu is 0.66 का whole square divided by 2. PT is equal to 21.59 watt. 21.92 watt. 21.92 watt. This is PD, transmitted power. ये सारे फॉर्मूले हैं जिसको हम लिख चुके हैं बहुत अच्छे से. Got it? लिखिए. समझ आ रही चीजें? ओके. Now the last parameter we have left, that is efficiency. That is neta. Neta is equal to mu square upon 2 plus mu square. That is 0.66 का whole square upon 2 plus 0.66 का whole square. So it will be कितना आएगा? It will be 0.178. Or we can say 17.8% is the efficiency of the modulation. Got it? So this is the very important formulas और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो हमने किए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए. क्लियर? डन? ये सारी चीजें आपने लिख ली? ओके, गुड. नेक्स्ट लिखिए करंट रिलेशन इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. करंट रिलेशन in amplitude modulation, AM. Current relation in amplitude modulation.
करंट रिलेशन इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। देखिए पीटी इज इक्वल टू क्या होता है, ये अपन पढ़ते ही आ रहे हैं। पीटी इज इक्वल टू सर पीसी 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2 का होल, इसको थोड़ा सा अच्छा लिखते हैं, 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का पीटी का होल स्क्वायर। दिस सॉरी दिस इज 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। सेम ईयर अपने यही किया ना लास्ट में, कहीं इधर तो नहीं कर दिया? यस, 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2, 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2 करेंगे। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, पीटी को आई टी स्क्वायर इंटू आर, इसको क्या लिख सकते हैं, आई सी स्क्वायर इंटू आर, 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2, ये लिख सकते हैं म्यू स्क्वायर बाई 2, म्यू स्क्वायर बाई 2। और यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहां से क्या आएगा, आई टी इज इक्वल टू आई सी रूट ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन विद रेस्पेक्ट टू करंट, दिस इज विद रेस्पेक्ट टू करंट रिलेशन। Got it? So IT is the transmitted current. Transmitted current. IT is the transmitted current. IC is the carrier current, and mu is the modulation index. This is a very important formula for the examination sometime. Clear? And same for the, if we will calculate for the VT. So VT is equal to same, VT is equal to VC root over 1 plus mu square by 2. This is for voltages. This is for voltages. This is for current. So these are the important formula. Write it. This is very important formula. Write it. लिख लीजिए आप. You can write the formula. Okay. लिख लीजिए. Now, next question. Try to solve it. Next question. Okay, we have to delete it. Now, question is, we have solved lots of question because GATE में question ही आता है. अगर हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, कितनी भी थ्योरी पढ़ ले, हमें मजा नहीं आएगा. एंड अनमॉड्यूलेटेड AM transmitter current is given by 5 ampere. Find AM transmitter current with 50% of modulation. 50% of modulation. An amplitude modulated AM transmitter current is given by 5 ampere. Unmodulated AM transmitter current is given by 5 ampere. Find amplitude modulated transmitter current with 50% of modulation. That is very nice question. Nice question. Now, देखिए अपन ये इतना जानते हैं कि IT is equal to IC root over 1 plus mu square by 2 for modulated wave और modulated. बट यहां जो IC है, देखो अगर अपन कह सकते हैं अगर mu is equal to 0 हो, अनमॉड्यूलेटेड, तो क्या होता है, IT is equal to किसके बराबर होगी, IC के बराबर. तो जब अनमॉड्यूलेटेड है, जब अनमॉड्यूलेटेड AM ट्रांसमीटर करंट है, बेसिकली इसका मतलब ही क्या है, ये IC इज इक्वल टू IT है.
This is IC already given. This is unmodulated AM transmitter means this is IC. So we can write it. We can write it. IT is equal to IC is already given, that is 10. नहीं 5 given आपको. It is 5 root over 1 plus mu square by 2 mu square by 2. तो यहाँ से क्या आएगा? IT is equal to 5 root over 1 plus म्यू की वैल्यू कितनी है भाई? म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 50% मॉड्यूलेशन, यानी 0.5 का होल स्क्वायर बाय 2. 0.5 का होल स्क्वायर बाय 2 अगर करेंगे तो वी विल कैलकुलेट दिस इज IT इज इक्वल टू 5 into 1.125, that will be equal to 5.30 ampere. Clear? Write it. Done. Next question. Next question. अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. एक बार इसको लिख लीजिए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एन AM ट्रांसमीटर current is given by 10 ampere with 40% of modulation, find AM transmitter current with 80% of modulation. Got it? क्लियर है? क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. बहुत आसान क्वेश्चन है. इट्स वेरी इजी. 10 एम्पियर विद 40% ऑफ मॉड्यूलेशन दिया हुआ है आपको. तो पहले आपको यहाँ IC निकालनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में अनमॉड्यूलेटेड वेव थी, तो IT इज इक्वल टू IC कर लिया आपने. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इस क्वेश्चन में सबसे पहले IT 10 इज इक्वल टू रूट ओवर IC इंटू 1 प्लस 0.4, क्योंकि 40% मॉड्यूलेशन है, डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ से आपको IC कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो यू विल गेट IC इज इक्वल टू 9.62 एम्पियर. यहाँ से आपका पहले IC आया. अब इस IC को पुट करना है आपको नेक्स्ट में. देन यू विल फाइंड द IT फॉर मॉड्यूलेशन, दैट इज 9.62 रूट ओवर 1 प्लस 0.4 का होल स्क्वायर. 80% मॉड्यूलेशन के लिए पूछ रहा है वो. देन आस्किंग फॉर द 80% मॉड्यूलेशन. 80% मॉड्यूलेशन मीन्स 0.8 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. If you solve it, you will get IT is equal to, if you calculate it, it will be 11.02 ampere. 11.02 ampere. Clear? .02 ampere. Done. Next, now we will talk about the multi-tone signal. We'll talk about the multi-tone signal. Multi-tone में क्या चेंज आएगा बताओ? सिंगल टोन एक सिग्नल था AM cos 2 by FCT. अभी ऐसे बहुत सारे सिग्नल हो, AM1, AM2, AM3, तो उसे बोलते हैं मल्टी-टोन सिग्नल. तो मल्टी-टोन सिग्नल के लिए एक बार एक्सप्रेशन अपन लिख लेते हैं कुछ, कि अगर मल्टी-टोन सिग्नल आ जाए तो हाउ विल यू हैंडल इट. ठीक है, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं. वी हैव टू राइट इट. राइट
मल्टीटॉन एम, मल्टीटॉन एम, मल्टीटॉन एम क्या होता है भाई? इसका एक्सप्रेशन देखते हैं एक बार, ठीक है। उससे पहले न्यूमेरिकल का आंसर लिख लीजिए एक बार, इसको क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिए। लिख लिया? अब अपन बात करने वाले हैं मल्टीटॉन के लिए। किसके लिए बात करने वाले हैं? मल्टीटॉन के लिए। तो मल्टीटॉन के लिए क्या होगा? बहुत सिंपल है, देखते हैं। देख, मल्टीटॉन एम, मल्टीटॉन एम, मल्टीटॉन एम में क्या होगा? देखो, अगर एम टी की जो वैल्यू है ए एम वन कॉस 2 पाई एफ एम वन इंटू टी प्लस ए एम टू कॉस 2 पाई एफ एम टू इंटू टी, सपोज ऐसा कोई सिग्नल है। पहले केवल यही होता था, अब दो सिग्नल ऐड कर दिए अपन ने, तो ये सिंगल टोन की जगह मल्टी टोन हो गया। दिस इज द मल्टी टोन सिग्नल नाउ, दिस इज एम्प्टी बेसिकली, केवल यही चेंज है और कोई चेंज नहीं है। तो अब अगर हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा, अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का एक्सप्रेशन अब आएगा मल्टीटोन फॉर मल्टीटोन, फॉर मल्टीटोन, तो एक्सप्रेशन क्या आएगा भाई? एक्सप्रेशन आएगा सर ए सी 1 प्लस म्यू वन, क्योंकि ए इंटू एम वन, तो म्यू वन कॉस 2 पाई एफ एम वन टी, यही होगा, प्लस म्यू टू क्यों? क्योंकि एम टू इंटू के, म्यू टू कॉस 2 पाई एफ एम टू इंटू टी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी। दिस इज द एक्सप्रेशन, मल्टीटोन एक्सप्रेशन। क्लियर? द मल्टीटोन एक्सप्रेशन, राइट? लिख लीजिए। इसका एक्सप्रेशन हो गया ये दिस इज द फॉर मल्टीटोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। नाउ नाउ अब क्या करना है? इसके बाद यहां से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस द, यहां क्या चेंज है? एसी वही है, कोस 2 पाई एफ सी टी वही है, केवल यहां पे म्यू वन और म्यू टू के दो एम के ए इंटू एम वन, ये क्या होगा? म्यू वन, और के ए इंटू एम टू, ये क्या होगा? म्यू टू। तो यहाँ पे ये म्यू वन एंड म्यू टू दो अलग अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स एक म्यू वन है, एक म्यू टू है, दीज आर द डिफरेंस। क्लियर? अब यहां से हमें अगर आगे चलना है तो क्या करें? तो म्यूटी जो ओवरऑल होता है, ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है, वो किसके बराबर होता है? याद रखना, रूट ओवर म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस जो भी आपका है। तो दिस इज द ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स। आपसे कोई और, क्योंकि म्यू वन म्यू टू अलग अलग दिया हुआ है, तो आपको ओवरऑल पूछ ले तो यू हैव टू राइट इट लाइक दिस, सेम ही है द टोटल पावर। इसके लिए अगर आपको टोटल पावर लिखना हो मल्टीटोन के लिए, तो पीटी इज इक्वल टू पी सी 1 प्लस म्यू टी आ जाएगा, म्यू टी स्क्वायर अपॉन 2, गॉट इट? म्यू टी स्क्वायर अपॉन 2। तो म्यू टी इज क्या है? म्यू टी यहाँ पे, म्यू टी इज यहाँ पे जो भी अपन ने निकाला म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर, दिस इज द म्यू टी। पीसी क्या होगा? पीसी सेम, that is AC square upon 2R, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। If R not given in the question, use R is equal to 1. Now
और क्या बचा? नीटा। नीटा क्या हो सकता है भाई? नीटा विल बी, व्हाट विल बी द नीटा? कैन यू कैलकुलेट नीटा? नीटा इज इक्वल टू, जो अपना पहले था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू टी टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस टोटल म्यू टी का होल स्क्वायर, दिस द नीटा, दिस द नीटा। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज दिस, एफिशिएंसी, सॉरी, द एफिशिएंसी, मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी, मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी इज दिस। क्लियर? नाउ IT, जो करंट का रिलेशन लिखाना था, IT इज इक्वल टू IC रूट ओवर 1 प्लस, अब यहाँ म्यू टी आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। जहां जहां बस ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दिस म्यू, use it and you can give the overall relations. Clear? If you will solve one question, you will get easily the answers. Okay? और अगर आप PUSB और PLSB देखोगे इसके लिए तो क्या आएगा, PLSB इज इक्वल टू PUSB, यू कैन कैलकुलेट इजीली, क्योंकि टोटल पावर आपको पता है, PC पता है, PT पता है। यहां से अगर आप PLSB और PUSB निकालोगे तो इट विल बी AC स्क्वायर म्यू 1 स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर म्यू 1 स्क्वायर अपॉन 8R, LSB1 USB1 अपॉन 8R, और PLSB2 और USB2 अगर आप निकालोगे तो इट विल बी AC स्क्वायर म्यू 2 होल स्क्वायर अपॉन 8R। तो ये भी आपका कैलकुलेट हो गया फॉर मल्टीटोन सिग्नल। दो सिग्नल अगर दिए हुए हैं तो यू कैन यूज ऑल दीज फॉर्मूलाज, दैट्स वेरी इजी, यू कैन यूज ऑल दीज फॉर्मूलाज। नाउ तो लिखें अपन क्वेश्चन। राइट, क्वेश्चन, जिससे अपने को और क्लियर हो जाएगा फंडामेंटल्स। क्लियर? एक बार इसको लिख लीजिए आप सारे लोग, देन विल स्टार्ट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स, फंडामेंटल क्वेश्चन, जो कि आपके बेस को बनाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। बस लिख लीजिए इनको, दीज आर सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, फटाफट लिखिए इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन for multitone, from multitone signal. Question is this: a carrier of 20 cos 5 into 10 की पावर 6t pi into 10 की पावर 6t is amplitude modulated wave by a message signal of having frequency 10 kilohertz, 20 kilohertz with modulation index of 0.6
and 0.8 respectively find all parameters and spectrum. Find all parameters and spectrum. Write it and then solve it. This is a multi-tone signal, example of multi-tone signal. This is the example of multi-tone signal. Write it. Okay. This is the example of multi-tone signal. Multi-tone signal. लिखिए. We will solve two numericals on the multi-tone. Very important numericals. So you can get the basic clarification with the help of these two numerical. अगर ये दो न्यूमेरिकल आपके क्लियर हैं तो आपका बेसिक एकदम फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा. ठीक है, लिखिए, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को. क्या क्या दिया हुआ है? कैरियर दिया हुआ है आपको, इसको लिखिए देन सॉल्व कीजिए. तो सॉल्व करें आगे अपन. क्या क्या दिया हुआ है देखो. अपने को दिया हुआ है AC 20 cos pi into 10 की पावर 60. This is given, sorry, this is given C of t carrier. C of t is given this. यहाँ से AC कितना आ गया भाई? 20 वोल्ट आ गया. अगर इसको कंपेयर करें 2 पाई FCT से, 2 पाई FCT से कंपेयर करेंगे तो FC कितना आ गया? FC is, तो कंपेयर विद 2 पाई FCT, तो यहाँ से 500 किलो हर्ट्ज. दिस विल बी 500 किलो हर्ट्ज. FM1 क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको. फर्स्ट मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी FM1 इज गिवन 10 किलो हर्ट्ज एंड FM2 इज गिवन 20 किलो हर्ट्ज. FM2 is given 20 kilohertz with modulation index भी दिया हुआ है आपको. Modulation index mu1 is 0.6 I think. कितना दिया हुआ है? mu1 is 0.6 and mu2 is 0.8. The best question for the multi-tone signal. Find all parameter and spectrum. Find all parameter and spectrum. ये अपने क्वेश्चन में लिख चुके हैं. Find all parameter and spectrum. ट्राई टू सॉल्व बेस्ट. सबसे पहले मैंने कहा था आपको, कुछ भी सॉल्व करने से पहले हमें कैलकुलेट क्या करना है? म्यूटी करना है. म्यू टोटल इज mu1 स्क्वायर प्लस mu2 स्क्वायर. आगे तो कुछ है नहीं, तो म्यूटी इज इक्वल टू mu1 कितना भाई? mu1 इज 0.6 सर. 0.6 mu1 इज 0.6 का होल स्क्वायर है भाई, प्लस म्यू2 कितना है? 0.8 का होल स्क्वायर है. तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो म्यू2 कितना आएगा? म्यू2 जो आएगा दैट विल बी, यहाँ से अगर आपने कैलकुलेट किया म्यू2 तो इट विल बी इक्वल टू 1. इट विल बी इक्वल टू 1. दिस म्यू2 इज इक्वल टू 1. आपने कैलकुलेट कर लिया. नाउ तो बहुत इजी है. और पैरामीटर निकालना, म्यू2 निकाल लिया. म्यू2 यानी टोटल कम्युलेटिव मॉड्यूलेशन इंडेक्स. म्यूटी इज इक्वल टू 1. एक बार अगर आपने म्यूटी इज इक्वल टू 1 निकाल लिया देन प्रॉब्लम इज वेरी इजी. बैंडविड्थ 2 FM मैक्स
ध्यान रखना, जो मैक्सिमम वाली है वो आप लेते हो 2f इंटू एफ मैक्स, दैट इज 2 इंटू एफ मैक्स कितना है, 2 FM दी हुई है आपको, एक 10 किलो हर्ट्ज एक 20 किलो हर्ट्ज, तो बड़ी वाली लेनी है आपको ऑलवेज, क्योंकि बैंडविड्थ उससे तय होती है, दैट इज 20 किलो हर्ट्ज, 2 इंटू 20 किलो हर्ट्ज, दैट इज 40 किलो हर्ट्ज, 40 किलो हर्ट्ज, ठीक है। नाउ पीसी, AC स्क्वायर अपॉन 2, पीसी इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाय 2। AC क्या है, AC इज 20 वोल्ट, तो 20 वोल्ट का होल स्क्वायर, 20 का होल स्क्वायर बाय 2, that is 400 divided by 2, that is 200 watt. This is the carrier power, 200 watt. Now can we calculate the total power? Total power PT is equal to PC 1 plus mu t square by 2। तो यहाँ से PC है हमारे पास 200 इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो इट विल बी कितना आएगा, इट विल बी इक्वल टू 300 watt, it will be equal to 300 watt, so this is PT is equal to 300 watt। now अब मुझे यहां से जो पता लग रहा है, दैट इज PT is equal to 300, PC is equal to 200, तो साइड बैंड पावर कितना हो जाएगा, साइड बैंड पावर इज PT माइनस PC, ओवरऑल साइड बैंड पावर निकालने की बात कर रहा हूं, तो P साइड बैंड इज ओवरऑल 300 माइनस 200, दिस इज 300 माइनस 200, that is 100 watt, total side band power for the multi-tone signal is 100 watt, ठीक है। now total PLSB और USB कितना हो जाएगा, that will be total side band power is 100 watt, clear। now आगे चलिए, यहां तक लिखिए एक बार, फिर आगे चलते हैं, यहां तक लिखिए, then we will move toward the next। लिख लिया, नेक्स्ट नीटा क्या होगा, नीटा इज इक्वल टू mu t square upon 2 plus mu t square, mu t square is, what is mu t square, mu t square is 1 whole square upon 2 plus 1 का whole square, so 1 upon 3, this is the नीटा efficiency, or we can say 33%, almost 33% is the efficiency, clear। so this is all about your basic parameters related to this question, sorry, related to this question, clear, done। सारे लोग देख लीजिए एक बार, इसको सॉल्व कीजिए, इजीली क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, S of t is equal to 20 plus 4 cos 4 pi into 10 to the power 4 t plus 6 cos pi 10 to the power 5 t into cos 2 pi fct into cos 2 pi fct, find mu t bandwidth and pt for this question, solve it।
सॉल्व इट। नो, इसमें देयर इज सम प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, वन डाटा इज मिसिंग, sensitivity not given, so we can say this is the there is some mistakes in this question, mistakes, the data is not given. Okay, no issue. Next question, some data is missing in this question, data is missing in this question. Okay, next question, write it. लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अनमोडुलेटेड AM and unmodulated AM power is given by 10 kilowatt, given by 10 kilowatt, where the carrier is modulated by single sinusoidal message, message signal. Transmitter power is increased to 13.5 kilowatt, 5 AM transmitter power. Find AM transmitter power. Find AM transmitter power. If next लिख रहा हूं मैं, if carrier is simultaneous modulated by second message signal with 60% of modulation, solve it. घर पे आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है? सॉल्व कीजिए इसको घर पे, you will get the answer. Answer will be 15 किलोवाट, ठीक है, ऑलमोस्ट 15 किलोवाट. तो उसको सॉल्व करना है आपको घर पे. Clear? Solve it at home. You will find the solution. This is assignment for you. Clear? Now we are moving towards three type of modulation, three type of AM. Then next we are moving comparison of, next topic is comparison of under critical and over modulation. Comparison of under critical and over modulation. ठीक है, तो लिखिए. सबसे पहले हम बात करते हैं अंडर मॉड्यूलेशन. सबसे पहले हम बात करते हैं
under modulation, under modulation, under modulation. देखिए अंडर मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है? हियर वी कैन से बेसिकली म्यू इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1, म्यू इज इक्वल टू लेस देन 1, इक्वल टू तो क्रिटिकल हो जाएगा, तो लेस देन इक्वल लेस देन 1, और वी कैन से एम, म्यू क्या होता है? एम अपॉन एसी लेस देन 1, क्योंकि म्यू कई बार अपन एम अपॉन एसी लेते हैं। और होता क्या है बेसिकली इन दिस केस, सपोज दिस इज द योर एम्प्टी, this is your carrier. Now the signal here, this and this is the A minimum and this is the A maximum. तो A minimum जो है वो नेगेटिव A maximum होता है एंड दिस इज A minimum होता है। गॉट इट? तो A minimum जो होता है वो पॉजिटिव होता है, बिकॉज दिस A minimum इज पॉजिटिव हियर। इसको ऐसे समझते हैं अपन, इसको ऐसे समझ सकते हैं। थोड़ा आपको पहले यहां तक लिख लिया आप, म्यू इज लेस देन इक्वल टू 1 और अंडर मॉड्यूलेशन एम अपॉन एसी इज लेस देन 1। इसको ऐसे समझते हैं, वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। सपोज दिस इज द मैसेज सिग्नल एम्प्टी। अब अपन बात कर रहे हैं सीटी की। सीटी इज लाइक दिस, दिस सीटी, दिस फाइनली मॉड्यूलेटेड वेव। तो मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूं। दिस विल बी द शेप like this and this will be the wave, amplitude modulated wave, changing amplitude according to message signal. So this is the Amex. Basically what we write this is the Amex and this is A minimum, and it may possible when mu is less than 1. Okay? If mu is equal to 1, this will touch this point. This green line will touch this point. A minimum is positive. A minimum क्या लिखा था अपन ने? आज पढ़ा था। A minimum is, आज सुबह पढ़ा था अपन ने, AC 1 minus mu. This is A minimum. A max क्या होता है? AC 1 plus mu. ये अपन पढ़ चुके हैं already. So this will be positive. This is positive. This will be positive. There will be some value of A minimum, positive part. This is the positive part, something positive. Got it? So it will be positive. This is called as the under modulation. Clear? Next, what is critical modulation? This is the under modulation. This is the concept of under modulation. The concept of under modulation. Then next one is the critical modulation. Critical modulation. Next is the critical modulation. क्रिटिकल मॉड्यूलेशन में क्या होता है? क्रिटिकल मॉड्यूलेशन इज लाइक दिस। इसको ऐसे समझ सकते हैं अपन, यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 1 होगा। ऑलवेज रिमेंबर, म्यू इज ऑलवेज रिमेंबर इज इक्वल टू 1। वी कैन से एम अपॉन एसी इज इक्वल टू 1। और अगर एम अपॉन एसी इक्वल टू 1 है तो ए मिनिमम की वैल्यू तो क्या होती है हमेशा हम जानते हैं, ए सी इंटू 1 माइनस म्यू। तो म्यू इज इक्वल टू 1 अगर हो जाएगा तो ए मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए मिनिमम विल इक्वल टू 0। दिस इज द क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, जहां पे ए मिनिमम की वैल्यू 0 होती है और ए मिनिमम की वैल्यू और ए मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी वहां पे? दिस विल बी 1 प्लस 1 2 AC हो जाएगी। और ए मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाती है? 2 AC हो जाती है, ध्यान रखना। और ए मिनिमम की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसको कैसे समझाएंगे? वी कैन राइट इट लाइक दिस। दिस इज द मैसेज सिग्नल एम्प्टी, this is the carrier signal, this is the carrier signal, and finally when we get like this, this is the message signal. Sorry. This will be like this.
and the message signal, the carrier wave will be like this. This is amplitude modulated wave. This, and this is the M minimum, and M minimum will be equal to 0, and this is the M maximum. This is called as the critical mu is equal to 1 concept, and mu is equal to 1 is critical modulation. Critical modulation. Write it. Critical modulation. Got it? Now, last one is over modulation. Write it. Then we will discuss about the last one. That is the over modulation. Over modulation. What will be over modulation? Done. Next. Over modulation. What is over modulation? Mu is greater than equal to 1. In this case, A minimum will be negative because A will be greater than, mu will be greater than 1. So AM minimum will be negative. So what will be the situation? Situation will be like this. This is the empty. This is a message signal. Yes, this is a CT carrier signal. This is an empty message signal. And then finally signal will be like this. Like this. And the carrier wave will be shifted into this envelope. There will be over modulation. This is a negative. The minimum is this. This. This is the A minimum. Over modulation. This is over modulation. This is over modulation. Clear? This is over modulation. कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको लिखना है. म्यू इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 एंड ए मिनिमम इज नेगेटिव. अब इसमें कोई दो पॉइंट्स हैं जो मैं आपको लिखवा देता हूं. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट पॉइंट्स लिखिए. पॉइंट टू बी रिमेंबर. पॉइंट्स in under or critical modulation, in under oblique critical modulation, in under oblique critical modulation, the message signal is stored. The message signal is stored in the form of
in the form of positive envelope, so that demodulation can be simple, can be done easily, can be done easily. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सर कि अगर का मतलब ये है कि दिस इज द, अगर ये जो पॉजिटिव है, ये जो ये ऊपर है, अगर ये अगर नीचे नहीं गया है ए मिनिमम, तो ये इंफॉर्मेशन जो मेनली होती है वो इस एनवेलप में होती है. इंफॉर्मेशन किसमें है? मेनली इस एनवेलप में है. ये तो मैसेज सिग्नल ऐसा ही, तो यही तो मैसेज सिग्नल है, दिस द मैसेज सिग्नल. तो इसमें मेन हमारा जो मैसेज है, बाकी तो कैरियर अंदर तो हमारा मैसेज ये है. कैसे भी करके हम इसको इस एनवेलप को अगर ले लें, इस एनवेलप को ले लें, इस एनवेलप डिटेक्शन को ले लें, इन एनवेलप को ले लें, तो हमारा पूरा मैसेज हमें ले सकते हैं. तो अगर ये नीचे नहीं गया है, लाइक ओवर मॉड्यूलेशन, अगर ये नीचे चला गया लाइक दिस, अगर ये नीचे चला गया, नेगेटिव हो गया, नो मॉड्यूलेशन पॉसिबल, नो डीमॉड्यूलेशन. डीमॉड्यूलेशन आपको पॉसिबल ही नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको डीमॉड्यूलेट करना. तो डीमॉड्यूलेशन आप तभी कर सकते हो जब आपने इसको ए मिनिमम नेगेटिव ना हो. राइट? तो वही पॉइंट हमने लिखा है, वही पॉइंट आगे जाके लिखा है हमने. This is the important point. In under critical modulation, the message signal is stored in the form of positive envelope so that demodulation can be done easily. Demodulation done easily. Clear? Done? लिख लीजिए इसको, फिर अपन स्टार्ट करते हैं जनरेशन ऑफ एम. Next is generation of AM. Next topic is जनरेशन ऑफ एम. पहला मेथड स्क्वायर लो मॉड्यूलेटर एंड दूसरा स्विचिंग modulator. There are two methods to generate the amplitude modulated wave, AM wave. First method is the square law modulator and second method is the switching modulator. So we will discuss each one in detail. What is square wave modulator and what is switching modulator? Okay. So first one will discuss about the square law modulator. First one is the square law. First one is the square law modulator. सबसे पहले होता है इसका ब्लॉक डायग्राम. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ब्लॉक diagram, that is very important for us. It is empty. This signal is like this. This is also plus local oscillator. This is local oscillator AC cos 2 pi FCT. AC cos 2 pi FCT, or we can say carrier wave. First, draw the diagram with me, then I will explain the significance of this. Then this is the square law
square low demodulator device, and last one is a band pass filter, and this is the output. Okay, draw it, then I will explain about it. And finally we will get the amplitude modulated wave, that is S of AMT, जो हम बना रहे हैं अभी तक. कैसे बनेगा अपन उसको बारे में बात करते हैं. That's very easy. बनाइए इसको, फिर अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं. Okay, draw the block diagram, then we discuss about it. ओके, लेट मी डिस्कस. ओके, देखिए सबसे पहले तो इसमें पॉइंट है स्क्वायर लो डिवाइस. व्हाट इज स्क्वायर लो डिवाइस? स्क्वायर लो डिवाइस क्या होता है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं. देखिए स्क्वायर लो डिवाइस, have you heard about diode? Diode is a square low device. Why? Because diode characteristic is like this. This is I and this is V. And here almost diode characteristic like this. यहाँ से चला और यहाँ से ऐसा हो गया. So almost here the diode characteristics go linear. In this region it means almost goes linear. But this is the square region. This is the square. This is the square region. तो देयर इज वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, जिससे पहले तक वो स्क्वायर लो की तरह बिहेव करता है, स्क्वायर की तरह बिहेव करता है आउटपुट. उसके बाद वो लीनियर होता जाता है. दिस इज लीनियर, ऑलमोस्ट लीनियर. लेकिन यहां जो है वो स्क्वायर है. तो वी गामा द कट इन वोल्टेज, जिससे पहले बिहेवियर किसकी तरह है? स्क्वायर की तरह है. कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह स्क्वायर की तरह है. सो द डायोड इज ए स्क्वायर लो डिवाइस. वी कैन से द डायोड इज ए स्क्वायर लो डिवाइस. एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्क्वायर लो डिवाइस? स्क्वायर लो डिवाइस क्या कर लेता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है? स्क्वायर लो डिवाइस का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है? दैट इज लाइक दिस. आउटपुट अगर आप कभी भी स्क्वायर लो डिवाइस का होगा, वो होगा a1 v1 प्लस a2 v1 स्क्वायर प्लस a3 v1 क्यूब. अगर आप इनपुट दोगे उसमें v1, तो आउटपुट जो आपको स्क्वायर लो डिवाइस का मिलेगा वो इस पैटर्न पे मिलेगा. इस पैटर्न पे आपको आउटपुट मिलेगा. स्क्वायर लो डिवाइस का जो आउटपुट मिलता है वो इस पैटर्न में मिलता है. नाउ अब देखिए यहां पे जो हमारा आउटपुट आने वाला है, यहां पे जो आउटपुट आने वाला क्या आएगा? दिस इज द एसी कैरियर वेव, दैट इज एसी cos 2 pi fct. दिस इज एमटी. तो यहां पे जो आउटपुट आने वाला है वो एमटी प्लस माइनस, या तो प्लस या माइनस, क्या आएगा? एसी cos, यहां लिख देता हूं मैं, एसी cos 2 pi fct. तो यानी इसको जो इनपुट मिलने वाला है स्क्वायर लो डिवाइस को, वो यही मिलने वाला है, एमटी एसी cos, एमटी प्लस माइनस एसी cos 2 pi fct. तो इनपुट फॉर स्क्वायर लो डिवाइस
दैट इज डायोड, क्या है इनपुट, क्या है डायोड के लिए, वी आई इज इक्वल टू एम टी प्लस माइनस ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी। अब यहाँ एक नोट लिखिए, क्योंकि स्क्वायर लो बिहेव कब करेगा, जब तक डायोड V गामा से कम रहेगा, कट इन वोल्टेज से कम इनपुट रहेगा, तब तक स्क्वायर की तरह बिहेव करेगा। तो अपने को ध्यान रखना है कि ये जो मैग्नीट्यूड है ये ओवरऑल जब डायोड में जाए तो डायोड के कट इन वोल्टेज से कम रहे इसका एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो इसके लिए एक लाइन लिखिए, यहां नोट लिखिए, ए कैरियर सिग्नल शुड बी जनरेटेड, ए कैरियर सिग्नल शुड बी जनरेटेड such that the peak voltage of Vi, the peak voltage of Vi यानी यहां जो मिल रहा है अपने को डायोड को जो मिल रहा है, ध्यान रखना, the peak voltage, this is Vi, basically this is Vi, Vi is equal to mt plus minus AC cos 2 pi fct, दिस इज Vi जो डायोड को मिल रहा है। और यहां जो मिलेगा दैट इज V2, यहां जो मिलेगा वो V2, यहां पे जो मिलेगा वो Vi है। तो स्क्वायर लो डिवाइस में भी यहां जो कैरेक्टरिस्टिक लिखा था अपन ने वो आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज Vi, मान लो आप दिस इज Vi एंड Vi। तो स्क्वायर लो आउटपुट देता है ये V0 लाइक दिस। नाउ दिस इज Vi। तो नोट लिख रहे थे अपन, द कैरियर सिग्नल शुड बी जनरेटेड सच दैट द पीक वोल्टेज ऑफ Vi must less than the peak voltage of this must less than cut in voltage of the diode, 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 so that diode exists, so that diode exists exhibit, sorry, diode exhibit square law characteristics, square law characteristics, square law characteristics, square law characteristics, स्क्वायर लो कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो सिग्नल आपका यहां तक पहुंच चुका है, कहां तक, यहां तक। ये जो सिग्नल है अपन ने यहां तक की बात करी, यहां तक की बात करी है कि सिग्नल इसमें गया, स्क्वायर लो डिवाइस में गया, यहां से आउटपुट आएगा, वो किस में जाएगा, बैंड पास फिल्टर में जाएगा। अब बैंड पास फिल्टर जो है उसका बिहेवियर क्या है, देखो बैंड पास फिल्टर का, तो वो अपन बनाते हैं एक बार कि बैंड पास फिल्टर का काम क्या है। बैंड पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर का जो नेचर होता है जनरली वो इस तरीके से होता है, एक पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को वो अलाउ करता है, सेम नेगेटिव में ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे वो ड्रॉ करेगा, गॉट इट, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को, उसका स्पेक्ट्रम है जिसको वो एक पर्टिकुलर बैंड को वो आपका अलाउ करता है बाहर जाने के लिए। क्लियर, सपोज अगर आप इसको ये मान लो कि दिस इज FC, तो दिस इज FC प्लस ओमेगा एंड दिस इज FC माइनस ओमेगा, तो एक पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को वो अलाउ करता है, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को वो अलाउ करेगा। अब होगा क्या, देखो ध्यान से देखना, यहां ये सिग्नल है Vi, ये जब स्क्वायर लो डिवाइस में बनेगा तो क्या होगा, स्क्वायर लो डिवाइस में बनेगा तो क्या होगा, आगे चलते हैं कि सर स्क्वायर लो डिवाइस का नेचर होता है V0 जो आउटपुट देता है वो देता है Vi, स्क्वायर लो डिवाइस जो आउटपुट देता है सर वो देता है A1 Vi प्लस A2 Vi का होल स्क्वायर प्लस A3 Vi का क्यूब, लाइक दिस, इस तरीके से आउटपुट मिलता है। अब यहां पे अगर आप देखो V0 इज इक्वल टू A1, Vi हमारे पास क्या है, Vi जो मिल रहा है वो मिल रहा है सर MT प्लस माइनस AC cos 2 pi FCT, तो अपन यहां क्या लिखेंगे, MT प्लस माइनस cos AC cos 2 pi FCT, ठीक है, इंटू Vi प्लस A2
फिर इसका स्क्वायर यानी mt प्लस माइनस AC cos 2 पाई fct का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस A3 mt प्लस माइनस AC cos 2 पाई fct का होल क्यूब। इस तरीके से ये टर्म जल्दी रहेगी। अब एक्चुअली क्या है, जैसे जैसे आप ये क्यूब ये आएगा 3, अपने को आउटपुट क्या लेना है ध्यान रखना। जो मेन सिग्नल जनरेट होता है ये हाई फ्रीक्वेंसी है, दीज आर टू मच हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हमें हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को हटाना है, ठीक है, क्योंकि वो हमें हमारा एएम सिग्नल जनरेट करना है, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट से हमें जो जरूरत है वो हटाना है। तो क्या यूज करें, अब हमें इस हाई फ्रीक्वेंसी को हटाने के लिए ही हम किसका यूज करते हैं, बैंड पास फिल्टर, क्योंकि जो हाई फ्रीक्वेंसी टर्म्स हैं इनको ऑटोमेटिकली कौन हटा देगा, हमारा बैंड पास फिल्टर। ऐसी फ्रीक्वेंसी चूज करेंगे बैंड पास फिल्टर की एक पर्टिकुलर बैंड को फ्रीक्वेंसी को ही वो अलाउ करता है, तो वो इस हाई फ्रीक्वेंसी को हटा देगा और केवल यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी उनसे सॉल्व करते हुए आपको आउटपुट जो मिलेगा बैंड पास फिल्टर का, क्योंकि हमें इसके ज्यादा नीड नहीं है इसके अंदर डिटेल में जाने की, तो आउटपुट ऑफ बैंड पास फिल्टर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, दैट विल बी, इन दोनों को सॉल्व करोगे आगे और उनको फिर बैंड पास फिल्टर लगाओगे उसके, तो इट विल बी A1 AC cos 2 pi fct प्लस 2A2 AC cos 2 pi mt AC mt cos 2 pi fct, it will be the output of the band pass filter। ये कैसे आएगा, क्योंकि इस सिग्नल पे जब हम बीपीएफ लगाएंगे, बैंड पास फिल्टर लगाएंगे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का, तो हमारे हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट खत्म हो जाएंगे और हमें केवल ये वाला कंपोनेंट आउटपुट में मिलेगा। हालांकि इसकी नीड नहीं है हमें जानने के लिए, केवल बेसिक पता होना चाहिए। तो ये वाला कंपोनेंट जब आउटपुट में मिलेगा, दिस सिग्निफिकेंस द AM, वी हैव जनरेटेड द AM लाइक दिस। तो वी हैव टू रिमेंबर इट, व्हाट इज द रोल ऑफ दीज कंपोनेंट्स। ये हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को हटाता है, हमें जो चाहिए रिक्वायर्ड कंपोनेंट को ही आगे पहुंचाता है। स्क्वायर लो डिवाइस यानी ये स्क्वायर नेचर करता है सिग्नल का, ताकि उसमें से केवल दो जहां तक हमें रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है वहां तक हम ले सकें, और ये जो है वो सम करता है। दिस द स्क्वायर लो डिवाइस, विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन जनरेट द AM एंड फाइनली वी गॉट दिस। ये कहां से आया, क्योंकि इसको अगर आप ओपन करोगे, इसको आगे ओपन करो, A1 MT प्लस AC cos 2 pi fct, इसको भी ओपन करोगे इन दोनों को, और फिर को बैंड पास फिल्टर से एक पर्टिकुलर fc की फ्रीक्वेंसी से क्रॉस करवा दोगे, तो केवल ये वाला कंपोनेंट बचेगा। वी डू नॉट रिक्वायर द डेरिवेशन, ओनली दिस कंपोनेंट विल रिमेन। और इसके बाद अगर आप आगे चलोगे तो आप इसको आगे ऐसा लिख सकते हो, A1 मैंने कॉमन ले लिए AC, इट विल बी लाइक दिस 1 प्लस 2A2 अपॉन A1 MT इंटू cos 2 pi fct। तो आगे अगर आप सोल्व करोगे बैंड पास फिल्टर का आउटपुट, दिस इज आउटपुट ऑफ बैंड पास फिल्टर, दैट इज AM, ठीक है। तो इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस, एंड हियर वी कैन से, तो स्टैंडर्ड से कंपेयर करें बैंड पास फिल्टर का आउटपुट, अगर स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो दिस इज AC डैश 1 प्लस KA MT into cos 2 pi fct, where K AC dash is equal to A1 into AC and KA is equal to 2A2 upon A1. These are the components. We have to remember the final results like this, the output of the BPF in the square law device, क्योंकि हम डेरिवेशन वहां पे नहीं कर सकते, वी हैव नो टाइम फॉर डेरिवेशन। क्लियर? डन? दिस इज ऑल अबाउट योर बेसिक फंडामेंटल्स। एंड एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं, सॉल्व इट ऑन द बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ओनली, जो हमने डिस्कस किया, ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। वन मोर क्वेश्चन फॉर दिस कॉन्सेप्ट, राइट द क्वेश्चन for the following
for the following AM modulator, square law device is characterized by V2 is equal to V1 plus V1 plus 0.1 V1 square. Then written is pass band of band pass filter. Pass band of band pass filter extend from 800 hertz to 1200 hertz. Find resulting AM signal. Find resulting AM signal and all parameters. Find resulting AM signal and all parameters. If ब्लॉक डायग्राम आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 cos 200 pi t this and this is plus 20 cos 200 pi t. Solve this assignment for you. This is V1. This is square law device, SLD square law device. This is V2. This is band pass filter. And this is finally S of AMT. Got it? And जो बैंड पास फिल्टर आपको दिया हुआ है उसकी जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो इस तरीके से दी हुई है 800 से लेके 1200 तक इज द बैंड पास फिल्टर का बैंड पास फिल्टर. ठीक है, इस तरीके से आपको दिया हुआ है. नाउ सॉल्व इट. फटाफट सॉल्व कीजिए इसको. आपको घर से सॉल्व करके लाना है इसको. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग गेट एग्जामिनेशन. Then last, clear? So this is called as a solve it assignment है आपके लिए. Solve at home, it's very easy and it is old gate question also. तो जो कॉन्सेप्ट आपने समझा है उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको सॉल्व करना है. ओल्ड गेट क्वेश्चन है ना, गेट क्वेश्चन भी है ये ओल्ड. ठीक है, तो आपको उस हिसाब से आपको सॉल्व भी करना है, पढ़ना भी है. और इसको आप लिखिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से. पहले क्वेश्चन को यहाँ से भी लिख लीजिए. मैं आपको टाइम दे रहा हूँ और फिर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी. Write the question, proper question, and then solve. Then solve the question. Solve it. Solve it. This is the question and this is the block diagram for this question. You have to solve it. Very easy. थोड़ा सा दिमाग लगेगा, इतना आसान भी नहीं है. देखते हैं. We will discuss in the next class. Okay. Thank you so much. Thank you for today's class. It's all about your today's class. Done. Thank you.